Good afternoon. Good afternoon. सुनाओ सिलेबस। सिलेबस सुनाओ, इतनी देर से लगा हुआ था ना स्क्रीन पे, याद हो गया? बातें करने का टाइम मिल रहा है तुम्हें? बताओ, यहाँ से शुरू करो। इक्वालिटी, लिबर्टी, नेक्स्ट चैप्टर sovereignty, individual and state. ओके, चलो तुम लोग रैंडम ही बोलो। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ओके, एनार्की, theocracy, democracy, crime and punishment, ऑस्टिन, बॉर्डिन, लास्की, कौटिल्य। ओके, मतलब इतनी देर से तुम्हारे आगे सिलेबस लगा हुआ था। हाँ, हम अम्बेडकर एंड गांधी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, व्हाट एल्स? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कैपिटल पनिशमेंट हो गया, मार्क्सिज्म, हाँ मार्क्सिज्म, फीमेल फिटिसाइड। अच्छा, बुक खोल के तो सब पढ़ के बता ही दोगे। हाँ, ह्यूमनिज्म। अच्छा देखो, है ना, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई विल टेल यू टू अंडरस्टैंड। अगर हम एक्चुअलिटी में देखें, पूरे सेकंड पेपर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल में सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। Actually, all the topics are just the interrelationship or a particular aspect of these 3 topics only. If we know these 3 topics, we actually know all the topics nearly. First. Secondly, whenever you write any question in socio-political, remembering the syllabus is very important, because आप कहीं पे कुछ भी आंसर लिख रहे हो, किसी भी चीज, मोनार्की का लिख रहे हो, you should talk about equality, justice, liberty, you should talk about sovereignty, you should talk about individual and state, form of government, political ideology क्या हो सकती है, everything, सब बेसिकली सिर्फ सिलेबस ही है जो आपको हर जगह काम आएगा। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप कोई भी सोशो पॉलिटिकल का आंसर लिख सकते हो। You just have to understand or have a clarity over what these concepts mean and what can be the various dimensions. तो पॉइंट्स सोचने भी नहीं पड़ते, क्योंकि हमें पता है क्या लिखना है। जैसे इन सिंपल टर्म्स, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। नाउ सॉवरेनिटी मीन्स द काइंड ऑफ supreme authority a government or a state or a person has. So it is simply termed as supreme authority. लेकिन जैसे हमने सुप्रीम अथॉरिटी की बात करी, सपोजिटली हमने किंग की बात करी, ही इज द सॉवरेन, और हमने पार्लियामेंट की बात करी, दैट इज द सॉवरेन। इफ किंग इज द सॉवरेन, व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन द स्टेट? आर ऑल पीपल इक्वल? नो, किंग इज अनइक्वल, इज हैविंग मोर पावर, तो इक्वालिटी की बात हो गई। लिबर्टी, आर पीपल लिबरल टू बिकम एनीथिंग? नो, liberty has been hampered. Is it just that on the basis of birth you put a person as a king? No, things will be different here in parliament. So this means if we are talking about the sovereign parliament, then the equality, liberty, justice will be different. And if it is different, this means that rights and duties will be different. Rights of a king and rights or duties of a king, whereas duties of citizen or praja and rights of the praja.
अगर किंग है तो ऐसा मान के चलते हैं कि उसके राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. But is it possible in democracy or if it is a parliamentary government? It's difficult. So rights and duties will be different. In monarchy, same. In monarchy, equality, liberty, justice, sovereignty, individual and state. The relationship between individual and state, what kind of relationship will be there if it is a monarchy? Means state बहुत strong हो जाता है अगर monarchy रहती है तो. Too much centralized. But if it is parliament with state legislature, with district government, and then Gram Sabha, dilution. This means more voice will be heard. एक आम आदमी की voice ज्यादा हो जाएगी तो relationship different हो जाएगा. Then theocracy. In theocracy, what happens? Religion is the supreme. तो कौन sovereign हो जाएगा यहाँ पे? King होगा क्या? God. God will be the sovereign. And who will be representing him? Priest. अगर priest आ गया तो equality कैसी होगी? अलग अलग टाइप की थियोक्रेसीज में अलग अलग टाइप से हम लोग इक्वालिटी को डिफाइन कर पाएंगे. लिबर्टी, जस्टिस, अगेन राइट्स एंड ड्यूटीज, अगेन डिफरेंट. राइट्स वही है जो धर्म ने दिए. whatever the religion has said are your rights, are rights. Whatever your duties, those are the duties. So basically rights and duties means religious rights and duties. And if something is debarred from religion, that is not your right. सिंपल. थियोक्रेसी में फिर वही सेम बात कर रहे हैं हम. डेमोक्रेसी फिर एक वही बात करेंगे. इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरेनिटी. सॉवरेन कौन होगा डेमोक्रेसी में? या तो पीपल या पार्लियामेंट. इन इंडिया पीपल, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट. बोथ आर डेमोक्रेसीज. अंडरस्टूड? We will again talk about rights and duties. We will again talk about that it is a better form of government than monarchy and theocracy. ठीक है. जब हमारे political ideologies में first is anarchism. Anarchism क्या है? Chaos. No government. Stateless. Headless situation. So anarchism कब फैलता है? जब हम किसी एक equality, liberty, justice में से किसी एक को over focus कर देते हैं. हमने कहा सब इक्वल होंगे. इक्वल मतलब कंप्लीटली इक्वल, नो डिफरेंसेस. हाँ नहीं, बताओ. ये कैपिटलिज्म में नहीं आएगा. हाँ, एनार्को कम्युनिज्म में आ सकता है. सो एनार्की मीन्स कंप्लीट नो अथॉरिटी. अब हमने कहा कि सब इक्वल है, कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए. एनार्की. सबने कहा नहीं, सबको लिबर्टी फुल दे दो. इक्वालिटी छोड़ो, फुल लिबर्टी दे दो. फुल लिबर्टी मींस एवरीवन इज फ्री टू डू एनीथिंग. फिर एनार्की आ गई. दिस मींस दैट एनार्की इज अगेन एक्सप्लेन्ड थ्रू द लॉपसाइडेड व्यू टेकन फॉर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस. एनार्की के अंदर सॉवरेनिटी किसकी हो जाएगी? स्टेट तो है ही नहीं, हेड है नहीं कोई, इंसान की खुद की. हर आदमी कह रहा है अपनिज भगवान है, और हर आदमी कह रहा है. तो सब भगवान ही टहल रहे हैं. अगर सोच रहे हो प्रॉब्लम, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है. nobody is there. So it is like हाँ, अजारकता. yes, अराजकता. correct, I stand corrected. अराजकता. So if everyone is the boss, if everyone is the king, there is no king. You know what happens? जब भी ऑफिसर्स दिल्ली के बाहर पोस्टेड होते हैं ना, तो उन्हें बहुत मजा आता है. In smaller states, smaller towns, in smaller districts, they feel so good about themselves because they are the only officers there.
and everybody respects them, everybody likes to pamper them, बहुत सारे perks privileges होते हैं वहां पे। ड्राइवर भी जब दरवाजा खोलता है हम लोगों का तो ऐसे खुलता है 4 बार ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर आजा हो जाती है दिल्ली में पोस्टिंग। नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में अगर जाना पड़ जाता है वहां पे हर कोई तो, वहां पे तो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब वहीं पे बैठे, हाईएस्ट मंत्री भी वहीं पे बैठे हैं। अब वहां पे जब आप पोस्ट होते हो देन यू गेट अ रियलिटी चेक, देन यू फील लाइक इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, because everybody is powerful there. So it has happened so many times when I was posted in this MOD, तो कितनी बार ऐसा होता था कि आप क्रॉस कर रहे हो, एक मिनिस्टर आपको क्रॉस करके, और वो भी फाइल लेके ऐसे 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 जा रहा है, तो यू फील लाइक, अब टीवी पे देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जयराम रमेश जा रही, मतलब यू फील लाइक यार ये तो जयराम रमेश है यार, इनसे तो बात करनी चाहिए थी, इनका इनका तो लेक्चर देखा था, ये था वो था, बट वहां पे हर कोई ऐसे ही फिर रहा है। तो वहां एक्चुअली में when everybody is a king then there is no king. So anarchy is something like that. Marxism, classless society, it is also talking about equality of economics, economic equality, सबकी इनकम एक जैसी होनी चाहिए, है ना, from each according to their ability, to each according to their need. जिसको जो आता है वो करवा लो, जिसको जितनी जरूरत है वो दे दो। पता है ना ये बात, बेसिक्स पता है, मार्क्सिज्म नहीं पता, खैर मार्क्सिज्म करेंगे, चिंता मत करो, वी विल डू इट। देन सोशलिज्म, अब सोशलिज्म में भी ट्राई इक्वालिटी लिबर्टी बैलेंस हो जाए, इक्वालिटी भी बनी रहे, लिबर्टी भी बनी रहे, एंड इट शुड बी डन इन अ मैनर इन विच जस्टिस इज अपहेल्ड। दिस इज आवर बैलेंसिंग टेक्निक, और ये सोशलिज्म ही सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। Democracies, all democracies are trying to balance this equality, liberty and justice, and this is the balancing act is socialism. Fine. Then humanism. In humanism, human is at the center. Will all humans be equal then? Humans will be equal. Will human be free? Humanism, will human be free? Of course, human is center पे तो free तो होगा ना। कौन sovereign होगा? Human itself. स्टेट के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होगा? जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेगा वो वैसा टाइप का उसका रिलेशन होगा। दिस मीन्स ऑल दोज राइट्स विच विल प्रमोट द सोशल गुड, not at the expense of individual but overall general prosperity, rights, duties same. Humanism. Then secularism. Secularism means separation of state and religion. यहाँ पे हम सेपरेशन की बात करेंगे, हम कहेंगे देखो इक्वालिटी लिबर्टी एंड, इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस हर आंसर में आ रहा है, it's not going anywhere. If you know the syllabus and if you know the context and if you know the concept, you can write it. Simple. Multiculturalism, again. Multiculturalism में क्या immigrants और citizens के rights equal होने चाहिए? Equality पे बात करेंगे ना? Rights of immigrants कैसे होने चाहिए? अब यानी कि कोई refugees आए, so we know a lot of Rohingya refugees came to India and many of them are settled in Delhi. So should we give them equal rights? No. अभी तो ह्यूमनिज्म की बात करी तुमने, समझ में आ रहा है? ह्यूमनिज्म विल से ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, इक्वल राइट्स दे दो, बट देन डेमोक्रेसी विल कम, डेमोक्रेसी विल गेट डिस्टॉर्टेड। अगर उन्हें हमने वोटिंग राइट्स दे दिए तो
राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी पहले, तभी जाके तो चीजें वो करेंगे. देन सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट हैज द डिसीजन टू डिसाइड. They will decide it on the basis of national interest. If you say all humans are equal, तो सबको rights मिल जाएंगे. लेकिन इक्वालिटी को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना. फिर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. भाई हम तो हमेशा से इंडिया में रह रहे थे, अच्छा ये लोग बाहर से आए और इन्होंने हमारे रिसोर्सेज ले लिए. Isn't it? Will poor not say? Will the poor of India won't they say there was this 100 kg of ration that was to be given to us, but now suddenly some other country, some other people are facing certain problems. Now we have 20 more people to share this. Our share is getting down. Is it equality or not? It's not equality. Justice is getting hampered. Then liberty. Refugees are free to move anywhere. No? Is it free? No, national boundaries. Lekin freedom of movement is a natural right. Equals should be treated equally, unequals should be treated unequally. एरिस्टोटल आ गया, लेकिन एरिस्टोटल की तो भी बुराई करके चुके थे थोड़े दिन पहले, कल. लेकिन एरिस्टोटल यूज तो हो रहा है ना. All of these things that we are. So can we apply one theory at anything? तो सोशियो पॉलिटिकल में हमारा काम क्या है, ये बताना कि भाई देखो, this also has, this is said by this is also a view, this is also a view, this is also a view, and all of these views, some are applied here, some are applied here. We cannot just say one thing is final. No. हम इक्वालिटी के लिए भी अलग अलग नोशंस यूज करते हैं, लिबर्टी के लिए भी अलग अलग नोशंस यूज करते हैं. जैसे जब तुम्हें आजादी चाहिए होती है ना, तुम्हें कहीं जाना है बाहर, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या आ जाता है इमीडिएटली? तुम्हारे ह्यूमन राइट है मेरा बाहर जाना. I should go out. I should have the liberty of making a trip, this and that, है ना? हाँ नहीं, अरे now Papa has a different view. लेकिन व्यू तो उनका भी गलत नहीं है, व्यू तुम्हारा भी गलत नहीं है, और व्यू उस पड़ोसी का भी गलत नहीं है जो तुम्हें देख के कमेंट कर रहा है. All of them are having views about liberty only. How much, to whom, and in what manner? That will determine which policy, which theory, which in which manner we will apply these principles. Simple. Principles सारे use होंगे, सारे. जैसे how many of you think equality होनी चाहिए? Raise your hands. Equality होनी चाहिए? कहाँ? किस चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए? तुम सबकी शक्लें इक्वल कर दे? नहीं, सबकी हाइट इक्वल कर दे, जिनके नीचे से एकदम नहीं. किस चीज में इक्वल होना है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अच्छा, ओके ओके. अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में इक्वल हो जाते हैं. हाँ, अब देखो देखो इक्वालिटी के अंदर भी अब बहुत सारे आइडियाज आ गए. देयर इज अ ऑप्शन, दीज आर टू पीपल. आइदर देखो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो, सॉरी, नेचुरल डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो हम इक्वल नहीं कर सकते, वो वी हैव टू एक्सेप्ट. Let us talk about conventional or man-made inequality. One inequality could be economic. आपने कहा दोनों को सेम पैसे दे दो. ये भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. Bancroft. There is a philosopher. उसने बड़ी अच्छी हाइपोथेटिकल कहानी सुनाई. रखो यार, कहानी सुनाती हूँ उनको एक छोटी सी.
अरे अरे हाँ हाँ आ रहे। तो क्या हुआ, उसने कहा हमें इक्वल कर। तो दिस पर्सन सेड let us understand equality. 100 people were what do you say washed to a isolated beach. एक isolated beach पे चले गए, वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि मतलब फूल पत्ती ये सब चीजें थी. अब नाउ दे वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम. 100 लोगों को संभालना आसान तो नहीं होता. दे वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम. अब वहां पे पैसे का तो कोई रोल था नहीं, पैसा तो कागज था जिसे जला जला के आग जला सकते थे. तो उन्होंने कहा अब क्या करें, हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम. So they said, let us divide 100 shells to each person at the starting. Starting में सब इक्वल हो गए, सबको इक्वल रिसोर्सेज, सबको 100 शेल दे दिए. अब जिसको जिससे जो काम था या जिसको जिससे जो चीज चाहिए होती थी वो एक्सचेंज करता और ले लेता. Some people invested their shells and bought a piece of land. Some people invested and opened a tea shop on beach. So they invested. Some investments failed, some flourished, some became rich, some became poor. Again, the situation was, what should the state do now? So the poor became poor because of, were they not equal at the starting? They were equal. Poor became poor because others became rich. He did not have, the poor did not have the capability to manage. अब देखो, तुमने बिल्कुल बात हाईलाइट करी. They did not had the capability. Okay, fine. Fine. So now government has 2-3 ways to bring back equality. अब सब इनइक्वल हो गए हैं, कोई बहुत रिच हो गया, कोई बहुत पुअर हो गया. 2-3 तरीके क्या है इक्वालिटी लाने के. आइदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस आपने कहा देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इससे सीधा आईएएस बनोगे, एवरीवन कैन अप्लाई. इक्वालिटी, एवरी सिटीजन ऑफ दिस आइलैंड 100 के 100 इस पे अप्लाई कर सकते हैं. बट द रिच कुड टेक better resources, they had better books, they had everything better, and the poor, उनका तो खाना भी नहीं मिल रहा उन्हें. So even the mentality has an effect. If you do not eat for a long time nutritious food, उन्हें याद नहीं रह रही हैं चीजें. They are, is it, आपने कहा लेकिन there is an equality of opportunity. Same exam for all can become IAS. But is it equality? But एक तरीका तो है, isn't it? One way it is, okay. Second way is if the government of that island decides कि यार let's do progressive taxation. अमीरों से 4-5 सेशन ले लेंगे और गरीबों में बांट देंगे, so that they can also live a decent life. Equality of outcome. Outcome means भाई पैसा ही तो देना है अल्टीमेटली. उनको 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 थोड़ा सा सपोर्ट ही तो करना है. ये भी एक तरीका जो हम अपनाते हैं. वेलफेयर स्कीम्स आर रन बाय, टैक्सेस वी टेक, एंड मोस्टली द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे पास. इनकम टैक्स 10%, 20%, 30% slabs. Again, another way of bringing equality. What can be the other ways? ये तो 2 मैंने तुम्हें बता दिए, और बताओ. Welfare schemes. So to ensure that the equality of opportunity is actually an equality, let us increase the state resources. We say education is free for all and whoever wants to study can study. एक और तरीका इक्वालिटी लाने का, सरकारी स्कूल फ्री है, उसमें मिड डे मील भी दे रहे हैं, so that the nutrition remains adequate. वो भी एक तरीका अपनाया है ना, to provide the resources at the grassroots level. और क्या करते हैं, रिजर्वेशन. हमने कहा let us reduce the criteria. भाई उस आइलैंड के आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए
let us reduce the criteria. Poor will get a this much reservation. Another way of bringing equality, isn't it? What else? हाँ, वो सब वेलफेयर स्कीम में आ गया. कोई और तरीके से इक्वालिटी लाई जा सकती है. Infra development is for all. Freebie for needy comes under welfare schemes. अगर रिच पीपल डोनेट करें तो भाई सरकार कहती है गिव अप योर सिलेंडर, गिव अप योर सब्सिडी टाइप की स्कीम्स निकालती है. एंड देयर इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने कहा हाँ तुम दान नहीं करोगे हम करवाएंगे. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड. ठीक है, ये भी कर रहे हैं हम लोग. और कैसे कर सकते हैं इक्वालिटी? मोर टैक्सेस ऑन रिच, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. अविनाश, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन इक्वली. ट्रांसपोर्टेशन विकास वो तो बेसिक रिसोर्सेज है. स्कूल बनवा दिए, सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिए, सो दैट एवरीबडी गेट्स इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, है ना? ओके, और कैसे इक्वल बना सकते हैं? देखो, तुमने अगर ये कहानी सुन ली और याद कर ली, तुमने सारा नियरली इक्वालिटी का चैप्टर कर लिया. बाकी तो कंटेंट कहाँ, बाकी सब तो दे ही देंगे, बाकी सब जार्गन है. हिंदी में बताओ क्या? इंग्लिश तो मैं भी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ. ट्रिकल डाउन अप्रोच लाइक, और हो तो क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. वो सब हम लोग स्टेट के लेवल पे नहीं बात कर सकते ना. इट्स रैंडम, है ना? और कोई तरीका है? आइसोलेटेड है, छोड़ो. सब पैसे सबसे ले लो आपस. वेरी गुड, यही सुनना चाहती थी मैं, यही सुनना चाहती थी. अब देखो, ये तो हो गए हमारे सोशलिज्म टाइप के में सारे वड़ियों से. हमारे सोशलिज्म टाइप के थे सारे. ये तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना. वी आर अ वेलफेयर सोशलिस्ट कंट्री, है ना? वेलफेयर सोशलिज्म हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ये सब काम करते हैं. इसमें बस एक चीज और जान लो. There is one more approach given by Amartya Sen, which is known as capability approach. Capability approach. Amartya Sen says, आपने साइकिल दे दी, so government distributes cycles as scholarships. They also give laptops. They give this and that. Lot of freebies are given. But problem with all these things are, थोड़े समय बाद साइकिल पे कपड़े सूख जाते हैं, या फिर साइकिल चला रहा होता है पापा, बेटी जिसको साइकिल मिली होती है वो स्कूल फिर भी पैदल जाती है. लैपटॉप दिया, चलाना सिखाया ही नहीं, अब उस पे सॉलिटेयर खेल रहे हैं, है ना? और वो कौन सा होता है, मारियो खेल रहे हैं, सांप, जो भी गेम्स होते हैं. Is it the right use of laptop? So Amartya Sen gives the theory that one way is to give resources, but that's not a feasible way. Second way is just to give them money, again not feasible way. आपने कहा अरे यार अमीरों से लो, गरीबों को दे दो. गरीब के अकाउंट में गया, हस्बैंड ने पैसे निकाले, जुए में उड़ा दिए. सिचुएशन रिमेन्स द सेम. चलो उसने जुए में भी नहीं उड़ाए, लेडी के पास चले गए, तुमने कहा नहीं लेडी के अकाउंट में डालेंगे, लेकिन लेडीज अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ मैन. चलो इन्फ्लुएंस में भी नहीं, अकेली रह रही है ना? अब उसने, लेडी ने पैसे निकाले, उसकी फ्रेंड ने बोला यार देखो ये जो बहुत सारे पैसे हैं, तुम एक काम करो, इसको इस स्कीम में लगा देते हैं, ये सहारा की स्कीम है, बहुत बड़ी कंपनी है,
लेट अस बाय देयर, नहीं नहीं शेयर नहीं, उनका उनका जो वो बॉन्ड था वो है ना, लेट अस बाय इट, बहुत पैसा ही पैसा होगा। फिर पता चला कि गड़बड़ हो गई मामला, क्या नहीं था। अच्छा फिर उस लेडी को बोला किसी ने, छोड़ो छोड़ो तुम बिजनेस डाल लो, है ना, तुम्हारे पास अब बहुत पैसे दे दिए सरकार ने, यू ओपन अ बिजनेस। सम अदर पर्सन एडवाइज्ड, अरे नाउ यू दैट यू हैव मनी, गिव डाउरी टू योर डॉटर, बिग डाउरी एंड लेट गेट हर मैरिड, और नाउ मेक योर son go to city and do some very flashy course. She could do all this, but problem with all this is उसको पैसा तो दे दिया सरकार ने, क्या नहीं दिया, capability to utilize. So he says, Amartya Sen says that giving money is not a solution, just making resources, government resources, not a solution. आपने वहां पे स्कूल बना दिया, स्कूल में कोई गया ही नहीं, वहां पे भैंसे बंध रही हैं, बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स को भी है कि हाँ हाँ ठीक है नाम लिखा हुआ है कोई बात नहीं, टीचर्स को और ही इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज मिसिंग? गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, छोड़ो तुम लोग, पता है किसी को ऐसे, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन वेलफेयर स्कीम्स? मनरेगा का बजट क्या है? What is the GDP of India? डॉलर? नहीं नहीं नहीं, अब इंडिया रुपीस में ट्रांसलेट करो, डॉलर में क्यों पढ़ते हो? Anyone who is very sure कि भाई मेरे को पता है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा, एक्सपेंडिचर, तुम सरकार का, तुम सरकार में नौकरी मांगने जा रहे हो, तुम्हें सरकार का एक्सपेंडिचर नहीं पता, इनकम टैक्स कलेक्शन कितनी होती है हमारी, ओके नो वरीज, तुम लोगों को पता चल जाएगा, जाके पढ़ लेना, ठीक है। योजना का एक आखिरी का पन्ना आता है बजट सेक्शन वाला, जिस दिन बजट आता है ना, उस महीने वाली जो योजना होती है ना, उसके उसके आगे पीछे जो फ्रंट और बैक कवर होता है ना, वहां पे एक रुपए का निशान बना होता है ऐसे, इतना पैसा यहाँ यहाँ से गवर्नमेंट को आया और इतना पैसा यहाँ यहाँ गवर्नमेंट का चला गया, मतलब ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है बेसिकली, हाँ ठीक है, बस वो पढ़ लेना, उससे बहुत सब पता चल जाएगा। ओके ओके गुड, ओके बेटा, ऑनलाइन पीपल तो मैं क्या बता रही थी, हम थोड़ा डी रूट हो गए। So capability. So Amartya Sen says resources is okay, but what is most important? Capability. If you give cycle, also give the capability to ride the cycle. साइकिल चलाना सिखा दो उसे, चलानी आ गई तो वो यूज करेगा, नहीं तो यूज का कोई है ही नहीं। You are giving money to the woman, okay. Also handhold her for startup or micro business. You are giving money to the poor, okay. Also give them the capability where they should invest, how they should invest, what they should do with the money, because only if capably done, only then the inequality will be reduced. नहीं तो फिर गरीब, lot of people stay in perpetual poorness even when the government is doing so much. Why? पैसा आया फिर इधर उधर खर्च कर दिया, पैसा आया पार्टी में उड़ा दिया, ये ऐसा है। ऐसे ऐसे कुछ दोस्त होंगे ना तुम्हारे जो हमेशा ही, घर वाले कितना भी पैसा भेजें, वो हमेशा उनके पास पैसे कम ही होते हैं,
they are perpetual poor. हाँ, वो 1 लाख रुपए सैलरी कमाएंगे तब भी. And there are some people who have whatever they get, they still manage to save also. They manage to. How many of you invest in SIPs? Okay. No, shares is okay. बेटा, आज मेरी बात को ध्यान से सुनो. बिल्कुल ध्यान से. All of you should start investing now. है ना? Just नहीं है तुम्हारे पास पैसे, 100 रुपए महीना. कोई बहुत बड़ा अमाउंट है 100 रुपए महीना? तुम जितना अफोर्ड कर सकते हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर capability or what do you say, whatever resources you have at your disposal, open a account on any of the portals. इतने सारे हैं, है ना? बहुत सारे हैं ना. पेटीएम वाला है, पता नहीं कितने सारे हैं, सब में ही है. हाँ, जीरोधा, जोन से, और जीरोधा तो उसके लिए आ जाता है, शेयर मार्केट के लिए. पर शेयर्स में मत जाना. म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे सेफ, बहुत सिंपल सेफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है? वहां पे जाओ, 100 रुपए महीने की SIP डाल दो. हाउ मेनी ऑफ यू नो कंपाउंडिंग? सो हम मैथ्स में घुस जाएंगे, छोड़ो. सिंपल, 100 रुपए डालोगे, कंपाउंड होते होते बाद में जब तक तुम एक सफिशिएंट लेवल पे पहुंचोगे, तुम्हारे पास अच्छी खासी सेविंग होगी. ठीक है? कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. थोड़ा थोड़ा SIP में डालते रहो. स्टार्ट समथिंग. ओके. तो कौन सा तुम अमीर बिलियंस वो कर रहे हो? अरे तुम्हें जो म्यूचुअल फंड्स नहीं करो, कुछ और कर लो, है ना? FD बनवा लो, जो भी है ना. देयर आर लॉट ऑफ, और there are lot of even small saving schemes by post office with good interest, है ना? थोड़ी थोड़ी उसमें डालते रहो. 500 रुपए महीना डाल दो. तुम लोग ना अभी पिज्जा खाने का बोल दो तुम्हें. अभी अभी तुम्हें बोल दो नेटफ्लिक्स ले लो. चलो कोई बात नहीं, कम बैक. तो एक कैपेबिलिटी अप्रोच हमें समझ में आ गई अमर्त्य सेन की. ठीक है, अब इसके अलावा अल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? कुछ और अल्टरनेट्स दिए अलग अलग थिंकर्स ने. एक थिंकर्स ने बोला कि इनइक्वालिटी इज गुड. लिबरल्स, लिबर्टेरियंस जो है ना, लिबरल्स ने कहा इक्वालिटी लाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इनइक्वालिटी इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. Only when you have someone rich, you feel that you also have to get rich. When you see someone powerful, someone at higher position, only then people want to go there. And to reach that place, they will do hard work, they will innovate, they will think. So this fosters innovation. This fosters hard work. This fosters competition. And in this competition, इतनी टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि कंपटीशन है. तो यानी कि जैसे इक्वालिटी करने की जरूरत ही नहीं है. लिबर्टेरियंस कह रहे हैं इक्वालिटी की कोई जरूरत ही नहीं है, इनइक्वालिटी बढ़िया है. एक और इसका आर्ग्यूमेंट आता है, लिबरल्स का एक आर्ग्यूमेंट आता है, नेचुरल सिलेक्शन है भाई. अगर फ्रॉग है, फ्रॉग 100 अंडे देता है, उसमें से जो बेस्ट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, जो बेस्ट नहीं होते वो they perish. Similarly, this is a kind of a
The inequality we see in the world is actually a natural selection, whereby people who are capable, intelligent, this, that, they prosper, and others are left to perish. लेकिन इस आर्गुमेंट में प्रॉब्लम है. अब ये जो दो बच्चे थे, इंटेलिजेंस में हर चीज में इक्वल थे. डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इसके फादर रिच नहीं थे, इसके फादर रिच थे. यही था बस. ये रूरल एरिया में पैदा हुआ, ये अब इसमें इसकी कैपेबिलिटी की कोई डाउट करने की बात ही नहीं है. This means the inequality that was there is not just because of capability, it was also because of the inherent situation. तो सिचुएशन की भी प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे ये वाला नेचुरल सिलेक्शन वाला आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है. कुछ लोगों ने कहा ठीक है, लेट्स मेक ऑल इक्वल. सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर लो, सब स्टेट की. किसी के पास ना जमीन होगी ना लड़ाई होगी. जिससे जिसकी कैपेबिलिटी का काम है वो ले लो. दिस मीन्स scientist who can do science should work in labs. A farmer should work in fields. A technician should work at field. But salary will be according to the need. This means एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसके पास 2 बच्चे हैं पर बच्चे, और वो खुद 2 है. 2 + 2 4 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ईच फैमिली मेंबर विल गेट 10,000 रुपीज पर मंथ. 4 है तो इसको मिल गए 4,000 रुपए. एक रहने के लिए घर दे दिया. उसी तरह एक फार्मर है, उसके 8 बच्चे हैं. क्या प्रॉब्लम है इसमें? यही तो है मार्क्सिज्म. दिस इज मार्क्सिज्म. फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. जितनी जरूरत है उतना दे दो, सरकार से उतना मिलेगा, लेकिन काम आपसे आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लिया जाएगा. या फिर चलो इसके भी 2 बच्चे हैं मान लो, चलो ये भी एक कैलकुलेशन हो सकती है. फार्मर के भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, दोनों को 4,000. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? डीमोटिवेशन टू वर्क. यस, इजंट इट? तुम लोग बोलेंगे इतना ही पढ़ाई करो, आंखें काली करो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनो, फिर वो रेडिएशन वाली लैब में जाके काम करो. इससे अच्छा पीछे सब्जियां उगाओ, सुबह वॉक के लिए जाओ, सन बात लो, थोड़ा सा फील्ड पे काम करो, शाम को आके नैप लो, दोपहर को चौपाल पे बैठो, और फिर जाके एक बार और फील्ड का विजिट कराओ, फिर आ जाओ. साल में 2-3 बार काम होगा. लेकिन क्या उसको प्रेशर है अपनी फील्ड पे अच्छा अच्छा वो खाना उगाने का? नहीं, क्योंकि जो जैसा भी उगेगा सरकार तो ले ही लेगी. नीड के हिसाब से उसे तो 4,000 रुपए मिल रहे हैं, चाहे उसकी फील्ड पे कुछ भी ना उगे या फिर बहुत अच्छा उगे. और अगर बहुत अच्छा हुआ तब भी सरकार ने ले लिया, नहीं हुआ तो भी जो भी कूड़ा करकट उगा वो भी उस सरकार ने ले लिया. प्रॉब्लम? ये वाली इक्वालिटी पसंद है किसी को? नहीं. इट इज समथिंग लाइक मार्क्स सबको डी ही मिलेंगे, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उनके लिए बेस्ट. जैसे अब इससे क्या होता है, currently there are people who perform good, there are currently mediocres, and there are people who are underperformers, है ना. So I say एवरेज आउट कर देंगे, सबको कॉमन मार्क्स लेंगे, मिलेंगे एवरेज. तो पहले टेस्ट में शायद कुछ लोग पढ़ कर आए, दूसरे में तो कहेंगे अरे यार कोई फायदा तो है ही नहीं. सबको मिलना तो एवरेज. जो पढ़ने वाले थे वो नहीं पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले थे वो और ही नहीं पढ़ेंगे. द overall grades will come down. Maybe we started with B, it will fall down to D, and after some time F, और धीरे धीरे Z खत्म.
अब वो कह रहे हैं यार एवरेज तो मिलना है, लिखो या ना लिखो, isn't it? This was another way of bringing equality. ये बताओ तुम जार्गन क्यों क्यों इतनी जार्गन क्यों? अच्छा तुमने कहा डिग्रेड, इट विल इट नॉट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, हार्मोनाइजेशन इन द सोसाइटी? मतलब it will prevent exploitation. It will prevent exploitation. हाँ, exploitation definitely it will remove, but it will also remove all the good work. Nobody will work hard, and after some time, this is what happened in Russia. Russia followed this, and what happened then? Everything collapsed. खाने को खाना ही नहीं था, क्योंकि खाना उगाने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। अब मेहनत करने का कोई फायदा दिखा ही नहीं, तो धीरे धीरे खाली पड़े हैं खलियान, क्योंकि सरकार दे रही है ना पैसा। तो no incentive, then there was no food for anybody. Industries collapsed. The such a great civilization was brought to the halt, and that's why USSR failed, and you know disintegration. अभी तुम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी ना? पढ़ी है? हाँ, तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो इट्स लाइक बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। I have taught world history once, and it was like नहीं, पर बहुत मजा आएगा। मैं एक क्लास तो लूंगी तुम लोगों की, है ना? एक काम करेंगे, सिंपल इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। तो बहुत, वर्ल्ड हिस्ट्री तो इतनी बढ़िया चीज है, यू शुड रीड। तुमने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, तुम्हारा विजडम लेवल एकदम शूट अप करेगा। तुम्हें रियलाइजेशन होगी, नॉट ओनली हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तुम इतनी सारी चीजें देखोगे, हम वही कर रहे हैं जो कर चुके थे, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, और वही सेम गलतियां कर रहे हैं लोग, और वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, एंड इट विल बी लाइक कि फिर तुम्हें खुद थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि यार मतलब आर वी स्टूपिड एज अ ह्यूमन रेस और व्हाट? हाँ, हाउ फॉरगेटफुल वी आर। इसीलिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट और हमारी जितनी भी एंशिएंट, जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, उन सबको वो बना देना चाहिए, मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स स्कूल में। नहीं नहीं, देखो हमारे हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ देखो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स इंटरेस्टिंग फॉर ऑल। हमारे यहाँ तरीका अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ उसको रटने के लिए सब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी चाहिए, वीडियोस ही दिखानी चाहिए स्कूल लेवल पे। कितनी अच्छी अच्छी हमारे पास एनिमेशंस हैं, है ना? वॉच इट लाइक मूवीज, एंड हिस्ट्री इज अ मूवी ओनली। जैसे अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, वो कौन सी थी? पोन्नियन सेल्वन। हाँ, पोन्नियन सेल्वन, है ना? अरे ऐश्वर्या राय वाली, है ना? उसमें अच्छे से डिपिक्टेड नहीं है, बहुत बेकार तरीके से, उसमें कुछ कंटेक्स्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ हाँ, वो बेकार बेकार तरीके से पिक्चराइजेशन। लेकिन अगर आपने वो वाला हिस्ट्री का बैकग्राउंड कभी पढ़ा है, चोलाज वाला और ये सारा राष्ट्रकूटाज और ये जितने भी किंगडम्स हैं, इनकी इंटरनल डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, आपको लगेगा कि आज का जो ये सब चीजें हो रही है ना, फेल है।
उस समय पे इतनी इंट्रीग्स होती थी, इतनी मतलब अलग लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग। पॉलिटिक्स के अंदर भी मतलब मल्टी लेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स। उस समय पे फेक न्यूज, उस समय पे पोस्ट ट्रुथ हीरा, हम आज कहते हैं ना पोस्ट ट्रुथ हीरा, उस समय में पोस्ट ट्रुथ हीरा, फेक न्यूज फैला दी अलग लेवल पे, सब वही चल रहा है। ओनली इफ somebody takes the pain and read it. खैर, कमिंग बैक, इक्वालिटी का एक नोशन मार्क्सिज्म हो गया, और क्या नोशन हो सकता है? सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या करा हमने? हमने कहा लोग अनइक्वल हैं, ठीक है, what we can do, we can just ensure that nobody is so poor that they do not survive or they lose their dignity. So to maintain their survival and dignity, we ensured that minimum support things should be provided. What are minimum supports? Basic nutrition, राशन, राशन कार्ड से आप खाना ले लो, बेसिक हेल्थ सरकारी में दिखा के इलाज ले लो, बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन इज फ्री, and all the basic accesses or basic facilities of the government will be available to you. But there will be no what do you say, no effort to make everybody equal. Equal करने का कोई मतलब नहीं है। हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर देंगे, जो बहुत रिच है उससे थोड़ा सा ले लेंगे, लेकिन उससे सारा नहीं लेंगे। अगर अंबानी रिच है तो उसे अंबानी ही बने रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में कौन इन्वेस्ट करेगा? अब 2000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का अगर सेमीकंडक्टर प्लांट लगना है इंडिया में, तो कैसे लगाएंगे? somebody must be there जिसके पास इतना हो ताकि सेमीकंडक्टर प्लांट लग सके। So we are not actually hurting the liberty of people to excel. We are just ensuring that nobody is absolutely poor. So we try to bridge the gap between, ये जो है ना ये वैली, there was a person Townie, he says inequality is actually the amplitude. This means ये अमीर है, ये बहुत गरीब। हमारा गवर्नमेंट का काम क्या है? रिच को थोड़ा सा कम कर दो, पुअर को थोड़ा सा दे दो, उठा दो, ताकि जो ये वाला डिफरेंस है ये ऐसे हो जाए। बस बार बार करते रहो। मिक्स्ड इकोनॉमी, वेलफेयर डेमोक्रेसी, वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर सोशलिज्म, सब यही नाम है, कुछ भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सब यही है। टेक अ लिटिल, गिव इट, बट we are not hampering the innovation, we are not hampering the movement and the progress of capable people. We are trying that more and more equality of opportunity to become meaningful. अगर एक एग्जाम है तो हम उसे मीनिंगफुली हेल्प कर सके, जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स फंड करती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी को। देयर आर लॉट ऑफ वेज, इवन बाहर की पढ़ाई के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स व्हिच आर गिवन। सो इन दिस मैनर इट इज ट्राइड कि इक्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, ज्यादा मिल कर दो ताकि जब बहुत सारे गरीब एटलीस्ट उसके चक्कर में ना कर पाए कि लॉजिक एक जन को इतना बड़ा कर दो ताकि उससे जुड़ते ना कुछ और भी ना गरीब लोग। हम किसी को अमीर नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। सरकार कैसे अमीर करेगी? वो तो लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म है ना, लेट रिच बी रिच एंड पुअर बी पुअर। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की कह रहे हो आप? दैट्स अ गवर्नमेंट थिंग। गवर्नमेंट अर्लियर आर गवर्नमेंट, हर्षित, पार्थ, इनके रहते हुए तुम भी। So earlier our policy was
this only trickle down. So for at that time when we started, it was the government policy कि भाई जो rich है उन्हें rich रहने दिया जाए, ताकि वो जो इकोनॉमी के अंदर हम बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो नीचे अपने आप ही ट्रिकल डाउन हो जाएगा. लेट अस पुट हेवी इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत हेवी इंडस्ट्री, कहीं पे उसे डेवलपमेंट करना होता था, उसने कहा यार यहाँ पे बड़ी भूखमरी गरीबी और अंडर डेवलपमेंट है, वहां जाके स्टील प्लांट लगा देती थी. स्टील प्लांट लगा दिया, अब वहां पे लोग आएंगे, इंजीनियर्स रहेंगे. अब जैसे इंजीनियर्स आ गए, अब उनकी वाइफ को ब्रेड चाहिए, सब्जी चाहिए, अब बच्चों को स्कूल चाहिए. देयर विल बी अ गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि अब गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा, स्टील प्लांट लगाया है तो देयर विल बी अ स्कूल. Then there will be a hospital. Now this school and hospital, will it cater only to the students of steel plant? No. External students will also be. डेवलप हो गया पूरा एरिया, वहां के आसपास के जितने लोग हैं सबको काम मिल गया. कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लीनर लग गया. धीरे धीरे उन्होंने देखा अरे पढ़ के तो बहुत फायदा होता है. So they also started looking, I will also get my son or daughter to be an engineer one day. Immediately aspirations rise, and aspirations rise, development happens. That was the trickle down effect. But trickle down is a very slow process. Very, very, very slow. Direct interventions are usually better. That is why Amartya Sen's capability approach is much better version of bringing equality. किसकी? नहीं. देखो, ये हमें लगता है, जैसे आप ऐसे सुना होगा, कोई भीख मांगते हैं तो कहते हैं ना ये काम नहीं कर सकते ये लोग. ऐसा सुना होगा कई लोगों का, वो रहता है ना कि ये लोग काम नहीं कर सकते, भीख मांगते हैं, इससे अच्छा किसी के यहाँ जाके काम कर. चलो एक भिखारी है, मैं कहती हूँ वो तुम्हारे पास आके कहते हैं सर मुझे अपने घर पर ले चलो, मैं आपका सारा काम करूंगा, ले जाओगे? ये इसीलिए कोई नहीं ले जाता, इसीलिए वो भीख मांग. Had there been a situation where they could have worked, of course. I'm not saying about the evil people. There of course there will be a section, and this section is not just in one aspect. In all things, कुछ evil लोग तो हर जगह होंगे. But इसका मतलब ये थोड़े ना सारे ही भिखारी कामचोर हैं. Avenues नहीं है. जैसे कि you might have heard about this, that in prostitution, so sometimes there is this forced prostitution or human trafficking. So the girls are from good families, from rural areas, taken to brothel, and once they stay there, even if they are rescued, most of the times their families don't accept them. There is a very good organization, Prajwala. If you people ever want to donate, a very good organization, Prajwala, who is which is helping for these human trafficking girls, for rescuing them. So it is अब वहां से वो आ गए, लड़की आई रिहेबिलिटेशन सेंटर में, घर वालों को बोला, घर वालों ने कहा नहीं, अब तो हमारी नाक कट गई. अब कोई पूछे कैसे, लेकिन फिर भी चलो, कि वी कांट कीप विद हर. क्यों नहीं रख सकते? अब इसकी छोटी बहनों की शादी नहीं होगी, समाज क्या कहेगा, हमें जात बाहर कर देंगे, whatever, है ना. A lot of things that happen. So now the girl is sent to this rehabilitation center, and now she even knows cooking, cleaning, and all these things. And now these organizations approach people like us, you, etc. है ना. And now they say कि आप इसे अपने घर पे कुकिंग का काम दे दो, के लिए रख लो, या इस काम के लिए रख लो. Most people don't do that. Will you? Yes. अपने मम्मी पापा की नजर से सोचो. तुम्हारी मम्मी को, अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारी दादी को पता चला कि अरे ये तो वहां से आई है, रखेंगी? नहीं रखेंगे. किसी की रखेंगी? एक आदमी की भी? रेयरली, है ना. So even when they learn some skills, not able to reintegrate into the society.
And now only option left is going back to where they were rescued. So this is the problem. So that is why capability approach is a very important approach. When he says capability, he's just not saying कि उन्हें सिलाई सिखा दो. Amartya Sen is saying वो सिलाई करके पैसा कमा पाए ऐसा एवेन्यू क्रिएट करो. Capabilities here is a much more wider definition. सिलाई सिखा देना is not capability. Capability मतलब उससे आप सर्वाइवल कर सको. आपने सिलाई सिखा दी, एक सेंटर खोलो जहां पे रिसोर्सेज हो, ये सिलाई कर सके और इसका सामान बिक सके. समझ रहे हैं? सो कैपेबिलिटी अप्रोच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच. उसी के ही एक और कंटेम्परेरी जोसेफ स्टिग्लिट्स, अनदर इकोनॉमिस्ट. पर खैर इतना डीप की जरूरत है, इतना तुम लोग कभी आंसर्स में लिख नहीं पाओगे. ठीक है, इतना बहुत है तुम लोगों के लिए. बाकी एक बार नोट्स देख लेते हैं क्विकली. वी विल रन थ्रू द नोट्स. इक्वालिटी कितने टाइप की हो सकती है, बस एक वो और देख लेते हैं. इनइक्वालिटी किस किस टाइप की हो सकती है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस. हमने देख लिया था ना ये. अब यानी कि जिस जिस जगह पे इनइक्वालिटी है, wherever there is inequality, we will have to talk also about the equality. How can you bring social equality? X, Y, Z, Z, Z. Political equality, economic equality. What are the ways? Economic equality we just saw. Like politically, how can we be politically equal? Voting rights to all the people, adults. Everybody should be able to stand for the positions. भाई हर आदमी, कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन सके. What else? ओके, और बताओ. Okay, vulnerable section representation through reservation. Okay, what else? Political parties are free to make their manifesto. है ना? Elections are held free and fair, and there is an attempt to reduce the muscle and money power by the government. है ना? और so there is this attempt by Election Commission to reduce the hatred or hate speech or all these things, but still, are we able to bring political equality? No. Where are we failing? Influence of money and muscle still there. Muscle less, money more. More and more election expenditures are being recorded. Okay, charismatic cultship. भाई कल्ट बन जाता है ना, कल्टशिप. हाँ, व्हाट एल्स? ब्रेन वॉश कर देते हैं. तो अब हमें अगर इक्वालिटी बढ़ानी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस अमंग वोटर्स, so that they vote on correct criteria. Second, more democratic political parties, ensuring the democracy within political parties, ताकि dynastic politics कम हो जाए. Transparency in accounting, plus constitutional bodies. Okay, fine. Budgetary limitations should be enforced, and rather, why not state funding? Some people have even suggested state funding of candidates for elections.
नहीं, बंद ही कर दो, उनका सारा खर्चा ही बंद। स्टेट की ही मशीनरी से वो खड़े हो सकते हैं, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंश्योर कैसे करोगे, कैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी? हर आदमी कहेगा अरे वाह स्टेट ही फंड कर रही है, हम भी खड़े हो जाते हैं, हम भी खड़े हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और व्हाट एल्स? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन तो लगभग फ्री हमारे यहाँ मतलब है। मतलब बाकी कई कई बॉडीज में प्रॉब्लम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हैज प्रूवन इट्स मतलब अब देखो चेंजेस अलग चीज है, लेकिन जनरली empowered and independent election commission, बिल्कुल बिल्कुल। what else? judicial review basic structure, okay fine। पॉलिटिक्स में और कैसे आप इक्वालिटी लाओगे कि गरीब, अब देखो अब तुम्हें सोचना है कि पॉलिटिक्स में इक्वालिटी कैसे लाए, ठीक है? सोचने का तरीका क्या है? एक तो है ये रैंडम डिस्कशन, एक है यू इमेजिन अ वेरी पुअर पर्सन, transgender, from a rural village, from depressed class and economically very poor। अब इस व्यक्ति को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हमें केटर करने होंगे? यही तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ना, दैट दिस पर्सन कैन आल्सो बिकम प्राइम मिनिस्टर, दे कैन हैव एस्पिरेशन। नाउ जस्ट थिंक कि उसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वाह, अपने आप पॉइंट्स आने लगेंगे। रिडक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, economics should be corrected, social more awareness should be there, democratic, अगर डेमोक्रेटिक होगा पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम तभी तो ये आदमी ऊपर पहुंच सकता है, नहीं तो ऊपर वाले ऊपर जाने ही नहीं देंगे, है ना? डॉगमेटिज्म कम करना पड़ेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम। तुम्हारे पास अपने आप पॉइंट्स आ गए, बस तुम उसे प्राइम मिनिस्टर बना दो, तुम्हारा आंसर तैयार है। सेम विद सोशल इक्वालिटी, सेम विद जो सोचने तुम जितने एस्पेक्ट्स है वहां पे। जैसे अब तुम्हें सोचना है इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे इंश्योर होगी, अंबानी बनना है, उसी व्यक्ति को तुम्हें अंबानी बनाना है। अब बताओ उसे अंबानी बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी? कैपेबिलिटी, दिस मीन्स ट्रेनिंग, देन इवन it should be free to apply for entrepreneurship. Should licensing be difficult or easy? Easy. What else? Initial investment should be, help should be given, startup program, startup stand up, subsidization wherever required, simplification of rules, नहीं तो उसे रूल समझ नहीं आएंगे, उसे एक लॉयर रखना पड़ेगा, बिल्कुल simplification of rules, one window clearance, हो गया है ना? बस बेटा उसे अंबानी बना दो, तुम्हारा आंसर तैयार है। ठीक है, ओके, just open your notes, we will go through them very quickly। हाँ, बस रिस्पेक्ट दिलानी है उस आदमी को, सोशल स्टेटस रिस्पेक्ट। अंकित पानी, ओके देखो, these are class notes, printed notes are also there, सब पढ़ डालो, है ना? रीड तो करना है, रीड करो और उससे अपने नोट्स बना लो, ठीक है? whatever you feel like, don't make bulky notes, make it in the form of mind maps, simple, as simply you can make it as possible। ठीक है, मैंने इसलिए ये सब आपको लिख के दे दिया क्योंकि मतलब ये सब ऐसे आप काफी सारी चीजें इसमें से जीएस में पढ़ोगे ही, बट फिर भी there might be some people who might not have joined some classes here and there, for them it will become difficult then to source things, तो मैंने इसमें डलवा दिया इसीलिए सब कुछ जहां तक जो जो भी पॉसिबल था। ओके
लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म ये सब लिख के फिलोसोफर का नाम, फिलोसफी का नाम लिखना अपने आप के अंदर। अब देखो इसमें रिलीजन बहुत ज्यादा नहीं घुसा सकते, है ना। only a small portion you can mention is that equality that we have discussed, बुद्ध ने करी थी, सब 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 सब, तो वो वाला इक्वालिटी वाला पोर्शन आप कहीं कहीं पे मेंशन कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ही ऐसा आ गया, हाउ शुड स्टेट गवर्नमेंट एंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब इसमें कहाँ से तुम लगाओगे, नहीं लगा सकते ना। और रैदर एक लाइन बीच में लिख सकते हो कंपैरिजन के तौर पे ज्यादा है, दैट इन रिलीजन्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट देयर हैव बीन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल टू रीच द गॉड। वहां से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिलीजन हमें देता है, वैसे ही हमें सोशियो पॉलिटिकल और इन सब जगह पे चाहिए। बट अगेन इट कैन नॉट बी द कोर ऑफ योर आंसर। ओके, नाउ सी, they will sound identical. Tone and tenor will be different, है ना। content is not different, tone and tenor वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। when you will write you will understand. currently because अभी उतना लिखा नहीं है ना, तो इसीलिए ये सब डाउट्स आ रहे हैं। okay, so now there is this concept of negative and positive equality, एक वो भी समझ लो before we move forward. नेगेटिव इक्वालिटी मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हमारे लिए हमारी आंखों में सब इक्वल है, नेगेटिव इक्वालिटी। पॉजिटिव इक्वालिटी, वी विल डिस्क्रिमिनेट फॉर पुअर so that they can be brought to equal footing with reasonable, on reasonable criteria। अब क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए कि आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी है, उसको राशन कार्ड दे दो, सबको नहीं मिल रहा, बीपीएल कैटेगरी है राशन। इफ यू डू नॉट हैव दिस मच लैंड विद यू, गवर्नमेंट विल एलोकेट अ लैंड। आवास योजना, तुम्हारे पास ये नहीं है, आवास योजना में घर मिल जाएगा। सो अ क्राइटेरिया एंड एफर्ट्स टू मेक यू, एफर्ट्स टू गिव यू सपोर्ट। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इक्वालिटी। यानी कि जो लोग कहते हैं कि इन इक्वालिटी बढ़िया है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए, वो क्या होंगे, वो किसे सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव इक्वालिटी को, नेगेटिव इक्वालिटी को। लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, आई गॉट इट। Equality is of two types, negative and positive. Negative means no discrimination. No discrimination means जैसे लोग कर रहे हैं, अगर जैसे चल रहा है चलने दोगे तो क्या होगा, inequality will happen naturally. It's a natural thing. Inequality will happen. It's a natural phenomenon. Inequality will happen. तो वो कहते हैं inequality है, होने दो, बस discriminate मत करो। Discriminate मत करो मतलब no reservation, no welfare schemes, and no state intervention. State should not intervene. State का काम है बस law and order maintain करना, कोई crime ना हो, बस ये maintain करना state का काम। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लेबरर्स को तो करने दो, बिकॉज वी शुड नॉट इंटरफेयर एंड डिस्क्रिमिनेट। नेगेटिव इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। लाइन लगी है, सब खड़े होंगे, आखिरी में चाहे एक डिसेबल्ड व्यक्ति खड़ा हो, बट वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड ब्रिंग दैट डिसेबल्ड पर्सन फॉरवर्ड, वी कैन नॉट, बिकॉज दैट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन, वहीं पे खड़ा रहना। नेगेटिव इक्वालिटी। पॉजिटिव इक्वालिटी, we will discriminate on a reasonable ground, under reasonable criteria. बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिकली पुअर है, EWS,
उसको और कोई सपोर्ट नहीं है, कोरोना में पेरेंट्स चले गए हैं, स्कॉलरशिप. We will discriminate, but on reasonable logical grounds. डिसेबल्ड व्यक्ति पीछे खड़ा है लाइन में, अगर उसको डिसेबिलिटी है वो ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता. We will discriminate and make a second line for vulnerable sections, ताकि इक्वालिटी अच्छे से आ सके. यानी कि अगर हम देखें तो ये किस नोशन को कर रहा है, थ्योरेटिकल इक्वालिटी या फिर फॉर्मल इक्वालिटी. फॉर्मल इक्वालिटी मतलब नाम की इक्वालिटी है, असलियत में इक्वालिटी है क्या ये क्या है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी. सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब in practice, in practical way, it is making people equal. क्यों इक्वालिटी है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा है. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा ना, तुम्हें जैसा करना है करो. स्टेट इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वल ही ट्रीट करेगा. यस, ठीक है. ओके, कम हियर. आज घर जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ लेना. Two sides of equality, negative and positive. Then balancing act. Balancing act is basically पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं. टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, अलग अलग तरीके की इक्वालिटी कैसी हो सकती है. लीगल इक्वालिटी. लीगल इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सब क्या है, लीगल इक्वालिटी. All are different types of legal equality. Constitution. अगर legal equality पे क्वेश्चन आ जाए, take full help of polity, discuss it. Then political equality. Political equality वही हम जो बात कर चुके हैं, representation, equal voting rights, this and that. Then economic equality, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. Then social equality, non-discrimination, equal representation, equal status, equal respect, dignity of all, सब high-fi words. Of course, बहुत अंतर है. Legal, ये तो I will not entertain this question. Legal means judiciary, political means legislature and elections. एकदम अलग है. Legal और political बिल्कुल अलग है. Proponents of equality. अब इसके अंदर आया पहला रॉज. देखो रॉजियो का कॉन्सेप्ट क्या है, जीन रॉजियो का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसने कहा अर्लियर देयर वाज अ स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या मतलब होता है स्टेट ऑफ नेचर का? जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर नोमैड्स, वी आर जस्ट लाइक we were something like just out of storage, no organization. But जैसे जैसे population बढ़ने लगी, there was requirement of some order. उन्होंने कहा तो यार हम आपस में लड़ते रहते हैं, अब आपस में लड़ाई को रोकना है, रिसोर्स एलोकेशन करना है. अब एक हाथी मार के लाए, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कोई तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, क्योंकि वरना लड़ाई हो जाती थी. तुमने वो ले लिया, तुमने ये ले लिया, तुमने अच्छे वाला वो कर लिया, अलग अलग. सो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू रॉजियो, people signed a social contract. This is also known as social contract theory. What is social contract? So all the people said that we will
choose one person to lead us and all the decisions will be taken by this person. और ये सब कुछ हम अपने थोड़े थोड़े राइट्स इसको दे देते हैं, थोड़े थोड़े राइट्स, थोड़ा सा राइट लिया उसको दे दिया और अब वो व्यक्ति हमारे लिए डिसाइड कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. And in this social contract, the person they choose or the system they choose is the state. तो basically state जो है बाकी सब लोगों ने मिलकर चूज किया है, यानी स्टेट की नजर में सब इक्वल है, सबने अपनी मर्जी से वॉलंटरली अपना कुछ राइट दिया है, यानी कि इक्वालिटी इज इनहेरेंट विद इन दी नेचर ऑफ स्टेट, उसी के अंदर है. अब डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? हाउ विल द डिसीजंस बी टेकन? न्यूट्रलिटी मतलब सबको समान समान तरीके से ही आपको जज करना है. And he says that we will create there is this concept of general will. What is general will? Public. सब लोग ने, तुम लोग ने, हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने बोला बताओ क्लास में नोट्स लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए? ज्यादातर लोगों ने बोला नहीं लिखने चाहिए. So it became the general will. So the state accepted the general will and according to that general will. So some of you might be thinking नहीं नहीं notes तो मिलने चाहिए, notes तो मिलने. That individual will was subordinated to the general will. अब वो जो individual will वाले लोग हैं, for them it is like ये रेबल्स हैं ये. मैम इट्स रूसो, ऐसे रूसो बोलते हैं क्या यार ये? अजय रूसो, पता नहीं मुझे रोजियो ज्यादा अच्छा लगता है बट रूसो. हाँ उनका तो रूसो बहुत फेवरेट है. रूसो और पॉलिटिकल साइंस से हमारा सोशियो पॉलिटिकल्स का सिलेबस बहुत मैच करता है, लेकिन हमारा ओरिएंटेशन और उनका ओरिएंटेशन बहुत अलग, वो बहुत डिफिकल्ट है. उनका वाला बहुत ज्यादा है और बहुत बहुत लेंथी है. किसी ने नोट्स देखे हैं वो वाले? नहीं नहीं देख लो ना एक बार, इट्स नथिंग लाइक वेरी. हाँ हाँ किसी कहीं के भी उठा के देख लो, पलट के देख लो, कुछ अच्छा लगे तो नोट कर लो. बट अगेन रिमेम्बर हमारा ओरिएंटेशन और उनका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है ना, थोड़ा अलग है. ओके ठीक है, ये इसी बारे में बात करेगा रूसो, है ना, इसको पढ़ लेना. इसका क्रिटिसिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई खास वो नहीं है. पहली चीज कि भाई एम्बिगुइटी ऑफ जनरल विल, कैसे पता चलेगी जनरल विल? जो लोग चाहते थे कि नोट्स ना मिले वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोले. अब कोई हो सकता है थोड़े ज्यादा लोग चाहते हो नोट्स मिले, लेकिन उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई. एम्बिगुइटी हाउ वी विल नो? या तो वोटिंग होती, पर मैं तुम लोगों को क्यों भड़का रही हूँ, मैं तो स्टेट हूँ. ये अब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताना, बिल्कुल क्या पता जनरल विल सही ना हो, इजंट इट? बिल्कुल. पोटेंशियल फॉर अथॉरिटेरियनिज्म, जनरल विल के नाम पे पता चले यही 5 लोग सरकार चला रहे हो चीख चीख के. पॉसिबल नहीं, मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ. हाँ नहीं पढ़ाना चाहिए. ओके फाइन, है ना, जस्ट रीड इट. है सरकार 2 लोग चला रहे हैं. कौन? अच्छा
नो कमेंट्स. ओके. कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स हम लोगों ने कर लिया. कार्ल मार्क्स वी विल ऑल्सो डू कार्ल मार्क्स इन ग्रेट डिटेल, है ना. तो इसको पढ़ के जितना समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना. कार्ल मार्क्स हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है. कमिंग टू नाउ, देर आर दिस 3 वेस्टर्न फिलोसोफर्स जिनके इक्वालिटी पे कुछ कुछ आइडियाज है जो इंटरेस्टिंग है. कोटेशन से आप अपनी आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बीच में यूज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन. कर सकते हो. इन्वर्टेड कॉमास में मत डालो तो कोटेशन आप थोड़ा सा मतलब इज़म थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मीनिंग सेम रहना चाहिए. कोटेशन अगर आपने कोट्स में लिखा, verbatim, what is the difference between verbose and verbatim? Exactly the same. Yes, verbose is when बहुत फालतू की बातें जब लिखी होती है, jargon. Verbatim is exact. Okay. So John Stuart Mill को भी हम लोग करेंगे, लिबर्टी में करेंगे, वहां से आपको इक्वालिटी में समझ में आ जाएगा. Then comes the John Rawls on equality of opportunity. ये भी हम लोग जस्टिस में करेंगे. रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एथिक्स में भी आ चुका है. एथिक्स पेपर के अंदर भी जरूर लिखना चाहिए जॉन रॉल्स के बारे में. स्टेट पीसीएस में हर बार आ जाता है. जितने भी हैं जहां पे भी एथिक्स जोड़ा गया है उनका फेवरेट है कौटिल्य, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन. यही 3-4 फिलोसोफर हैं जस्टिस में, है ना. सो इट वी विल डू इट. देन रहा मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग रेशियल इनइक्वालिटी की बात करेंगे. वो क्या बोलेंगे? color does not matter, character matters. Even if so it is like should a person be judged on the basis of the color of their skin? No, they should be judged on the basis of character, the content of their character. वही बात वही वो इन्होंने लिखा है. फिर हमारे यहाँ इन्हीं के काउंटर पार्ट कौन है? बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर सर क्या बोलेंगे? Caste discrimination is the biggest menace. Caste itself should be uprooted. उसने कहा जातिवाद को उखाड़ के फेंक दो. फिर महात्मा गांधी. महात्मा गांधी again will talk of equality, but will he just talk of caste equality or economic equality? No. He talks, he's a Vedantin, he's a neo-Vedantin. Remember, Gandhi ji is a neo-Vedantin. And as a neo-Vedantin, he will talk very similar to Vivekanand ji, whereby he says, we are all part of this nature or Brahm. All means all. Britishers, Americans, Japanese, all. Therefore, he talk about dharma. Dharma means duty. He says, if we all focus on our duties, we will make the world right. उसने कहा राइट्स पे जब तक ध्यान देते रहेंगे तब तक प्रॉब्लम है. जब हमने अपनी ड्यूटीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया, everything will fall into place. And when he talks of equality, he talks of spiritual equality, moral equality. इसीलिए जब भी वो बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के लिए भी उन्होंने बात करी तो अहिंसा की बात करी. He said, hate the evil but not the evil doer. बुराई को हटा दो, व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं है. सो ही हैज इक्वालिटी एट द स्पिरिचुअल लेवल. उस लेवल पे उन्होंने इक्वालिटी की बात करी है. देन ग्लोबल एंड इंडियन का फ्यूजन जिसको हम मान लेते हैं, अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच. ठीक है, ये सारी ये जीएस वाला पार्ट है. फ्रॉम सोशल इक्वालिटी टू कल्चरल इक्वालिटी. पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इसमें कुछ खास ऐसा वो है नहीं, लेकिन जितना भी जीएस का हमारे यहाँ पे जरूरत थी वो मैंने इसमें
अब हमारे यहाँ पे अब आता है हमारा रेलेवेंस ऑफ इक्वालिटी, पेज नंबर पेज नंबर है ही नहीं, एच, ठीक है, लास्ट के 5th पेज, लास्ट 5th पेज। हाँ, इक्वालिटी क्यों जरूरी है बताओ? ये हम शायद कर चुके थे, कल कर लिया था ना हमने। परफेक्ट। रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अभी है हमारे पास टाइम। देखो, इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच का जो रिश्ता है वो है लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट रिलेशनशिप कैसे? ठीक है, अब क्या हुआ? लोग खुश रहो तुम लोग। You people don't understand modern art. हमारे यहाँ तो प्रथा रही है ना, तुमने देखा नहीं दुर्गा माता के कितने सारे हाथ होते हैं। Okay, okay, come back. You people judging me on my art. We'll see you in your test. Okay. So, all these people different. अभी क्या हुआ? किसका? चुप रहो तुम लोग। ये लो, तुम लोग खुश रहो। A B C D E F, ये सब लोग हैं, ठीक है। Different people facing different circumstances, ठीक है। So now this person this person is a woman, ठीक है, and this person is a male, this person is a transgender, this person is disabled, and this person is a upper caste male, this person is a lower caste male, ठीक है, lower caste male, upper caste male। और एक और बना लेते हैं FG, this is a lower caste female, ठीक है, ये अपर कास्ट हो गई फीमेल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। अब इसमें अर्बन रूरल भी हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती है, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन बन सकते हैं, डिफरेंट वो सब कुछ 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 हो सकता है, लेकिन लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन कैपेबिलिटीज एंड व्हाट यू से राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए अब इससे। नाउ इफ गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट मतलब state wants that we should bring equality. Equality means that all of them should be able to apply for this position or should be able to give UPSC or should be UPSC छोड़ो यार, कुछ और कर लेते, should be able to start their business, है ना, उन्होंने अपना स्टार्टअप करना है, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि एवरीबडी शुड बी इक्वली बी एबल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। व्हाटएवर पॉलिसीज द गवर्नमेंट मेक्स, उन्होंने कहा एक तो तरीका है कि कुछ ना करे सरकार, जिसने अप्लाई कर लिया द नेगेटिव नोशन ऑफ इक्वालिटी, जो अपने आप अप्लाई कर ले उसको दे देगी, बट गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग। यानी कि अगर
lower caste women, transgenders and disabled people are never able to apply because of social, economic, political conditions. Government will not do anything. Negative equality. ठीक है, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली गवर्नमेंट करना चाहती है तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा. जैसे उन्होंने कहा लेट अस गिव रिजर्वेशन टू लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स, तो उन्होंने रिजर्वेशन दे दी. लेकिन जैसे ही उन्होंने रिजर्वेशन दे दी, क्या हुआ? इक्वालिटी लाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या हैम्पर हो गया? लिबर्टी. लिबर्टी कैसे हैम्पर हो गई? रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ सर्टेन अदर पीपल. सर्टेन पीपल, वो ऐसा वाला डिस्कंटेंट सुना है अब? जनरली देयर इज अ डिस्कंटेंट, मेरा तो सिलेक्शन हो जाता अगर चीजें इक्वल होती, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो व्हाट हैज हैम्पर्ड? लिबर्टी. Their freedom to get selected based on their merit was restricted by the government to ensure liberty. Female reservation, not just reservation, anything. जो भी सरकार करेगी उससे इक्वालिटी लाने के लिए कुछ भी स्टेप सरकार लेगी तो वो किसी ना किसी की लिबर्टी को हैम्पर करेगा. This means that if you increase equality, what goes down? Liberty goes down. If you increase equality, liberty goes down. ये एक वे ऑफ थिंकिंग है. लेकिन दूसरा वे ऑफ थिंकिंग है कि विदाउट इक्वालिटी देयर कैन बी नो लिबर्टी. एग्जाम्पल, अगर बहुत इनइक्वालिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? So people are very rich, some people are very rich and some people are very poor, not able to survive. What will happen? Crime. ये जो चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, क्यों हो रही है? समझ में आता है? उसको लूट लिया, ये कर लिया, वो कर... What is this? Inequality. And because of this inequality, crime will increase. Will anybody be free if the crime increases? No. So if and why is there low crime in Scandinavian countries? क्योंकि वहां पे पीक्स और वैलीज इतनी नहीं है. वहां पे मतलब एकदम शैलो है ये वाला लाइफ. पीपल रिच हैं लेकिन सब लगभग सरवाइव कर रहे हैं. इतना कोई नहीं है कि किसी के पास खाने को 2 रोटी ना हो. वहां पे गरीबी की डेफिनेशन भी थोड़ी अलग है हमारे से. हाँ. सो वहां पे देयर इज दिस लाइक के लोग डिश वॉशर नहीं खरीद पा रहे तो वो लोग कहते हैं कि वी आर पुअर देयरफॉर वी कैन नॉट बाय डिश वॉशर. है ना? हमारे यहाँ अलग टाइप के चैलेंजेस है डेवलपिंग नेशंस के अंदर. तो इक्वालिटी के, लिबर्टी के लिए भी इक्वालिटी एक सर्टेन लेवल पे. So there will be certain philosophers who will say that equality and liberty are contradictory. Some will say no. Liberty and equality are complementary. बस ये डिबेट है. क्वेश्चन आ जाएगा सीधा लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉन्ट्रोडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री. अगले साल क्वेश्चन आएगा लिबर्टी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इक्वालिटी, कमेंट. उसके अगले साल आएगा लॉर्ड एक्टन सेज इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर कॉन्ट्रोडिक्टरी, डिस्कस. सेम ही है, बस अलट पलट के. देखो तुम लोगों को मैं बता दूं, तुम लोगों का काम है अच्छे शेफ वाला ग्रेवी बना के रखो. एग्जामिनर ने कहा पनीर की सब्जी दे दो, पनीर का छौंका लगाया, दे दिया. उसने कहा प्याज की सब्जी दे दो,
So one thing you should know, and you should have chopped vegetables. Chopped vegetables means names, quotations, thinking, thoughts, various, but डालना क्या है ना? And gravy is structure, your syllabus, your basic ideas. That remains. जिस टोन में क्वेश्चन पूछा है उसी टोन में तुम आंसर कर दो. अब इसको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. More you will have to write, more your writing skills will evolve. ठीक है. अब ये वाला जो पोर्शन है वो हम कल करेंगे. मैं चाहती हूँ कि ये हमारा पहले 3 चैप्टर में ज्यादा समय लगता है. इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वो फाउंडेशन है. एक बार वो क्लियर हो गया बाकी तो फिर इट्स वेरी इजी. ओके, बाय बाय. Ma'am, please explain how liberty and equality are complementary. Nikita, don't worry, we will do it tomorrow again.